your today topic is Gaussian elimination method with row pivoting. ठीक है, row pivoting. So today I am going to tell you what is Gaussian elimination method. Why we use Gaussian elimination method? We use Gaussian elimination method to solve system of linear equations. What is system of linear equations? The system of linear equations are those equations which we solve uh, for the unknown variable as in class 12th. For example, x plus 2y plus 3z is equal to 1, x minus y plus 5z is equal to 7. कुछ भी करें, 7y plus 3y plus z is equal to 9. This is the system of linear equation. Or x plus y is equal to 7, x minus y is equal to 9, whatever. Okay, this is the system of linear equations. Means if you have equation more than one, then it becomes system of linear equation. So this type of problem in which system of linear equations is given to you and it is said to you solve system of linear equation by Gaussian elimination method. Okay, so that is we are going to study to solve this kind of system of linear equation. To solve system of linear equation means we have to find out the value of x, y and z. तो ये क्वेश्चन आया था आपका DU 2019 में. व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन था सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस using Gaussian elimination method using with row pivoting. ठीक है, ये आया था. और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हाट वाज द x plus 2y plus 3z is equal to 1, 2x plus 6y plus 10z is equal to 0, 3x plus 14y plus 28z is equal to -8. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 and equation number 3. This is the your questions which comes in your exam, GE4, generic 4. So what all of you know, please let me know anybody that how we will solve this system of equation if you studied in your previous classes. What is the method for that? Anybody, please tell me. कौन बोला? अनुजा, प्लीज आप बताइए. अनुज, फर्स्ट और 2 को सॉल्व करके 2 वेरिएबल्स y और z में आ गई. देन थोड़ा सा सही तरीके से बताइए, मतलब एलोबरेट कीजिए तो आप क्या करें. करेक्ट. ओके. नहीं, थर्ड में तो एक्स वाई जेड है और फोर्थ में ओनली वाई जेड है. एनी अदर? हाँ, कौन बोल रहा है? एक सेकंड बेटा.
अनुजा, आप बताना चाह रहे हैं जी? आपका कौन, आपका नाम? रितु जी, बताइए। करेक्ट। करेक्ट। हाँ, एक एक वेरिएबल में ले आएंगे और फिर उन्हें बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व। करेक्ट। दिस इज द क्वेश्चन एलिमिनेशन। करेक्ट। करेक्ट। यही हम लोग अब आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। दिस इज द क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड। ओके, क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इन टर्म्स ऑफ वाई जेड ले आएंगे, टू वेरिएबल। सेकंड और थर्ड से एक्स को रिमूव करके वाई जेड में ले आएंगे। ओके, और वी विल गेट इक्वेशन नंबर 4 and 5. Then we will solve that equation in terms of y and z, and we will get a new equation in terms of z only, and thus we will get the solution x, y. This is the Gaussian elimination method, and this method I am going to explain in your just now. Okay. So let's see what she said. She said, suppose this is our system of linear equation, 2y plus 3z is equal to 1, 2x plus 6y plus 10z is equal to 0, 3x plus 14y plus 28z is equal to minus 8. This is your equation number 1, this is your equation number 2, this is your equation number 3. What we are going to do next? We are going to remove x from equation 1 and 2 and equation 2 and 3. तो क्या है हमारा नेक्स्ट में? eliminating x from equation 1, 2 and 2 and 3. How? by कैसे करेंगे हम? by -2 multiply equation 1 plus equation 2 and -3 multiply equation 1 plus equation 3. ओके, तो अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ दिस वन, ओके, दिस वन अप्लाई करता हूँ तो क्या है? इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी? x प्लस 2y माइनस 3 प्लस 3z इक्वल टू 1। इसमें हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? -2x माइनस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू -2। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 एज इट इज लेते हैं। तो इक्वेशन 2 एज इट इज लिया तो यहाँ आ गया 2x प्लस 6y प्लस 10z इज इक्वल टू 0। इनको ऐड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐड वाला साइन लगा हुआ है इस जगह। तो x से x कैंसिल हो गया। दिस इज 2y प्लस 4z इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमारी एक नई इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ y एंड z ओनली। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस वन हियर। तो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1 में हमने मल्टीप्लाई किया है -3 से, तो -3x -6y -9z इज इक्वल टू -3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 एज इट इज 3x प्लस 14y प्लस 28z इज इक्वल टू -8। ठीक है, इनको ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो दिस विल बी, कितना हो गया आपका? 8y प्लस 19z इज इक्वल टू -11। तो ये हमारे पास आ जाता है। तो 10 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 थी वो अब हमारी हो जाती है बिकम्स इक्वेशन 1 एज इट इज x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 की जगह हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन 2y प्लस 4z इज इक्वल टू -2।
और इक्वेशन 3 की जगह हम लिखते हैं ये वाली इक्वेशन, 8y प्लस 19z इज इक्वल टू -11। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। बेटा प्लीज मेरा साथ दीजिए, कहीं भी कोई डाउट आए तो प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछिए, समझा हम देंगे आपको। ठीक है, वेरी गुड। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? हमारा नेक्स्ट टारगेट है इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 से वी आर गोइंग टू रिमूव वेरिएबल y। तो यहाँ हम लिखेंगे एलिमिनेटिंग y फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। कैसे करेंगे हम? बाई -4 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 5 प्लस इक्वेशन 6। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो हम इसको जब यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है इक्वेशन नंबर 5 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8y माइनस ए, हाँ, फिर -16z इज इक्वल टू +8। इक्वेशन नंबर 6 एज इट इज 8y प्लस 19z इज इक्वल टू -11। दोनों को ऐड कर देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐड वाला साइन है, इससे कैंसिल हो जाता है। तो दिस बिकम्स 3z इज इक्वल टू -3। तो अब इक्वेशन नंबर 6 किससे रिप्लेस हो जाएगी? 3z माइनस 3 से। तो आवर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बिकम्स, अब 4 5 6 से हमारा क्या बन जाएगा? इक्वेशन नंबर 4 एज इट इज आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 5 एज इट इज, और इक्वेशन नंबर 6 की जगह आ जाएगा 3z इज इक्वल टू -3। अब मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने जनरली ऐसे लिखा है जिससे समझ में आ जाए। अब हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 था, उसे सॉल्व करने के बाद वी गॉट द न्यू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 7 8 एंड 9। नाउ बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, now by back substitution we will find out the value of x y z। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अभी मेरे पास पेज कम है तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इम्पोर्टेंटली आपको ये बताना है। तो देखिए इन दिस पेज, फर्स्ट व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड? द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड इज first remove variable x from equation number first two equations, then x from another two equations, and we will get equation 4 5 6. Next remove equation number variable y from equation 5 and 6, and we will get equation 7 8 9, where equation 7 has variable 3 variable x y z, equation has 2 variable y and z, equation 9 has only one variable which is z। Okay, so by this we easily find out the value of x y. After this solving this question, I am going to solve same question by the help of matrix method. In the matrix method, there is some rule, three rules, which we are going to apply. But the calculation in this and the calculation in the matrix are the same. Okay. In matrix form, first we write this is in terms of matrix form. After calculation, we write directly this in terms of matrix form, and after calculation, we will write in terms of matrix form. That I am going to tell you. First solve this problem. So now equation 7 8 9, we have got equation 7 8 9. Now by back substitution
method to solve this upper triangular system. So by equation number 9, what we got? 3z is equal to minus 3. This implies z is equal to minus 1. By 8, 2y plus 4z is equal to minus 2. z की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन y will come 1. By 7, x is equal to 1 minus 2y minus 3z. ठीक है, तो this will be x is equal to 4. So this is your answer. Any doubt? Okay, very good. अब हम इसी सेम क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे. तो बिफोर यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड आई एम गोइंग टू टेल यू three operations which we are going to apply. You have to apply only three these rules. No other rule you will apply for solving the problem. What is one? First rule is you can multiply any row by any scalar. Suppose you have 1, 2, 3, 4. So this is your row 1, this is your row 2. और अगर थर्ड होती तो that will be your row 3. So if you want R1, 2, 3, R1, you can do, or by the help of this matrix will change 3, 6, 3, 4. So this will be similar matrix. Next is you can interchange any row with any another row. Means if you want to interchange R1 with R2, so your matrix will be 3, 4, 1, 2. This is your third. So second rule. And third important rule is what? Ri is equal to या इधर लिखे हम Rj is equal to Rj plus ARI. ठीक है. Suppose what is this? You want to write R2 में आ जाए R2 minus 3 R1. तो इससे हमें मैट्रिक्स क्या मिलेगा? जैसे यहीं पे लिख देता हूँ मैं R2 is equal to R1 minus 3 R1, ये R2, सॉरी. तो ये क्या बन जाएगा आपका? R2 क्या है आपके पास? 3, 4. R1 क्या है आपके पास? 1, 2. मल्टीप्लाई करते हैं -3 से, तो -3 -6 ऐड किया तो यहाँ बन गया 0 और ये -2, ये बन गया. तो ये जो मैट्रिक्स है इस पे अगर हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मैट्रिक्स मिल जाता है? 1, 2, 0, -2. ये मैट्रिक्स हमें मिल जाता है. अब आप इन तीनों रूल्स को अच्छी तरीके से समझे. ठीक है, और कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ. इधर हाँ जी, अंकिता जी, इन थ्री रूल्स में कोई डाउट है तो बताइए. ठीक है, एनी अदर स्टूडेंट? ओके, तो अब हम देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड. A is equal to given to you 1, 2, 3, 2, 6, 10, 3, 14, 28. B is equal to 1, 0, minus 8. X is equal to
एक्स वाई जेड। जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया और इसे हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर। मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना आई होप आता है, नहीं आता है तो प्लीज आप मुझसे पूछें। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। सपोज आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 3 1 माइनस 1, एक्स वाई के कोफिशिएंट, यहाँ पर वेरिएबल एक्स वाई और इज इक्वल टू 5 2। तो ये आपका ए हो गया, दिस इज एक्स और दिस इज बी, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। Now I am going to solve by the help of matrix. Okay, Gaussian elimination method using matrix. Which method we are going to apply? Please remember why I am saying again and again. You have to be strict. It is said to you कि you use Gaussian elimination method, then you have to use Gaussian elimination method in your exam. So be careful which method you are going to apply. So by Gaussian elimination method using matrix, I am going to solve this problem. So how we will start? Just first write a b like this, then write down the value of a 1 2 3 2 6 10 3 14 28, then dash 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 and the value of b 1 0 minus 8. This is the same equations which we have done just before. Now what is the procedure? Procedure is keep it as 1 and make 0 in the place of 2, make 0 in the place of 3. हमने वहाँ क्या किया था, याद कीजिए, हमने x को रिमूव किया था। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, x को ही रिमूव कर रहे हैं। 2 के स्थान पर 0 बनाने का मतलब क्या है, वी आर गोइंग टू रिमूव x फ्रॉम रो 1 एंड रो 2 या इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, एनीबडी प्लीज टेल मी R2 में मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं कि यहाँ पर 0 बन जाए, कोई बता सकता है? चलिए मैं हैव, वेरी गुड, R2 माइनस 2 R1, वेरी गुड। R3 में हमने अप्लाई किया R3 माइनस 3 R1, करेक्ट। ठीक है, यही हम अप्लाई करेंगे कि देखिए हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3 1, और यहाँ पर हमने अप्लाई किया तो दिस विल बी 0 आफ्टर कैलकुलेशन, 0 और 2 4 माइनस 2, दिस विल बी 0 8 19 और माइनस 11। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताइए। मैं एक फिर भी आप लोगों के लिए कर देता हूँ कि ये वाली इक्वेशंस कैसे आई है। ठीक है, मैं एक बता देता हूँ ये कैसे आई है, उसी तरीके से बाकी सब भी आएंगे। तो ये आया है बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो हमने क्या अप्लाई किया है R2 में, R2 माइनस 2 R1। तो देखिए कैसे कल R2 क्या है हमारे पास, ऑल ऑफ यू नो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। R2 इज 2 6 10 0। R1 में हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 एंड माइनस 2, फिर ऐड कर देते हैं तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 2, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी माइनस 2। तो आप देखिए यहाँ पर जो R2 हमने लिखी है इस जगह पर वो सेम इज दिस वन। किसी को कोई डाउट है, क्लियर है ना ये कैसे आया मैट्रिक्स? वेरी गुड। ठीक है,
नाउ व्हाट इज, हमने आगे क्या किया था उसमें, हमने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का यूज करके उसमें से y को रिमूव किया था, सॉरी फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन का यूज करके y को रिमूव किया था। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। दिस इज our 2 and we are going to make 0 here. So what we will do here for this will be this one, this is matrix, and we apply r3 minus 4 r2. So what it will become, r1 is same as 1 2 3 1 0 2 4 minus 2. Okay, and when you apply this one, what you will get, 0 0 3 minus 3. Okay, तो 10 आपने जो इक्वेशन नंबर 7 8 और 9 आपको मिली थी, ये वही है, एग्जैक्टली सेम है। 1 2 3 1 मतलब x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1, 0 2 4 माइनस 2 मतलब 2y प्लस 4z इक्वल टू माइनस 2, 0 0 3 माइनस 3 मीन्स 3z इक्वल टू माइनस 3। तो आगे, बाई बैक सब्स्टिट्यूशन, तो बाई बैक सब्स्टिट्यूशन तो हमारे पास थर्ड r3 से क्या आ गया, 3z इज इक्वल टू माइनस 3 मीन्स z इज इक्वल टू माइनस 1। r2 से क्या आएगा हमारे पास, 2y प्लस 4z इज इक्वल टू माइनस 2। This will be after calculation, after the putting the value of z, y will be 1, and this is x plus 2y plus 3z is equal to 1. So this will be x is equal to 2. Okay, this will be your answer. So this is your answer. First method is Gaussian elimination method. जो पहला क्वेश्चन हमने किया था that is Gaussian elimination method by simple technique. This is Gaussian elimination method using matrix form. But listen carefully, जो भी दो क्वेश्चंस हमने ये किए हैं ये विदाउट पाइवोटिंग किए हैं। विद पाइवोटिंग वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और पाइवोटिंग व्हाई वी नीड पाइवोटिंग वो भी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। यहाँ तक आज की क्लास में आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ओके, वेरी गुड। तो आई एम गोइंग टू गिव यू one practice question. So I request to all of you, please solve this question and try to understand that Gaussian elimination. Have you understood the Gaussian elimination method or not? If you are able to solve by using matrix Gaussian elimination method by using matrix, then that means you have understood. If you are not able to solve, then it is you have not understood. You have to learn again. And for the tomorrow class, we required today's class. So please take a look of today's class. Your example is question is solve following system of linear equations ax is equal to b using Gaussian elimination method. Gaussian elimination method with मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैंने लिख दिया ऐसे कि मैट्रिक्स फॉर्म में ही आपको करना है। तो आई सजेस्ट यू always use matrix form because it will take less time. What is a? A is 30 minus 20 minus 10 minus 20 55 minus 10 minus 10 minus 10 and 55. B is given to you 0 0 200.
and x is given to you x, y, z. Okay, so after calculation your answer will come x is equal to 3, y is equal to 2, z is equal to 5. So please all of you, please do this question. Next I am going to take your attendance.